How are you all? Hope you all are well. Okay, my dear kids, we finished that lesson, right? That Anokhi Artha about Nisha, that Shikha and all, they went for a picnic. That lesson we finished. So today we are going to take the book exercise. Okay, all take your textbook page number 65 and write on the up of it today's day 23 to 2021 Mangalwar. Write on the up of it. And while ma'am is reading, you should read with me, okay? Then only you can improve your reading skill. Okay, listen here carefully. Chiku is telling something to Chino. Okay, their conversation only this one. Chiku, शिखा की हिम्मत देखकर तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई. By seeing the Shikha's courage, I felt so that my आंखें खुली की खुली. I became so surprised that आंखें खुली की खुली गई. That is the main word there. You see what is that one? I will explain on the next one. You see, then Chino is telling, पर इतनी देर तक तुम आंखें खुली कैसे रख सकते हो? So when Chiku is telling that, by seeing the Shika's courage, my आंखें खुली की खुली. By seeing the word, we think that he was keeping the eyes always open. Okay, khul means open, aankhe means eyes. So that Chinu is asking, how can you open your eyes for long time? Like that Chinu is asking. So Chiku is, अरे आंखें खुली की खुली रहना मुहावरा है. It is an idiom. आंखें खुली की खुली रह जाना मुहावरा है. It is an idiom. Like we should explain some feelings. So we are telling in another word. That is the what idiom. इसका अर्थ होता है आश्चर्यचकित रह जाना. What is the meaning of that idiom? आश्चर्यचकित हो जाना, stunned, astonished. That is only the meaning of आंखें खुली की खुली रह जाना. तो मैं बताता हूँ कि मुहावरा क्या होता है. I will tell and give you that what is मुहावरा, idioms. What is that? I will tell and give. Like that Chiku is telling to Chino. So in that box you can see, विशेष अर्थ को प्रकट करने वाले वाक्यांश को मुहावरा कहते हैं. विशेष अर्थ को प्रकट करने के वाले वाक्यांश को मुहावरा. सो विशेष अर्थ को प्रकट करने वाले वाक्यांश को मुहावरा कहते हैं. वाक्यांश मीन्स फ्रेज. सो फॉर अपियरिंग द special meaning, we are using a phrase that is only muhavara, idioms. Okay, muhavara means what is विशेष अर्थ को प्रकट करने वाले वाक्यांश. प्रकट करने वाले वाक्यांश. For appearing the special meaning, what we are using as a phrase, that is only what muhavara. Underline that one, my dear kids. मुहावरा, विशेष अर्थ को प्रकट करने वाले वाक्यांश को मुहावरा कहते हैं. देन मुहावरा पूर्ण वाक्य नहीं होता. इट इज़ नॉट ए कंप्लीट सेंटेंस. इट इज़ नॉट ए कंप्लीट सेंटेंस. इसलिए बिकॉज सो दैट इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता. वी कैनॉट बी यूज इट एज इंडिपेंडेंटली. वी कैनॉट यूज इट इंडिपेंडेंटली. सो दैट इज़ नॉट ए फुल. That is not if we are keeping independently means it won't be full. Okay, that sentence won't be finished. So that we can't use it independent. That is only idioms. Then वाक्य में प्रयुक्त मुहावरों को रेखांकित करें और अर्थ लिखें. It is telling that some sentences are giving down. You have to underline that idioms and also you have to tell the meaning of that. What is the meaning? Okay, first one. घूमने के नाम से सबकी आंखों में चमक आ गई. घूमने के नाम में सबके आंखों में चमक आ गई means when we heard that we are going to picnic, by hearing that itself our eyes became so glow. So it is the word meaning is eyes became so glow. Why the eyes became glow? Because we are happy. So आंखों में चमक आ गई. Underline that word. That is only मुहावरा. So what is the meaning of that? खुशी होना. What is the meaning of that? खुशी होना, happy. Write that. खुशी होना. I won't send it in the PDF and all. You have to copy that from the video itself. Okay. Then अंत में सारी हिम्मत जुटाकर बस हम चल पड़े. अंत में सारी हिम्मत जुटाकर बस हम चल पड़े. At last we take all the courages and we have started going.
हिम्मत जुटाकर is the मुहावरा here. Underline that and write हिम्मत करना, to make courage, to take courage. Okay. Then निशा ने चाहते हुए कहा. निशा was happily telling something. चाहते हुए कहा, what she is telling. चाहते हुआ, that is only मुहावरा. Underline that one and write that खुश होना. What is that? खुश होना. Then डर के मारे पसीने छूट रहे थे. डर के मारे पसीने छूट रहे थे. Because of affright, sweating. It was sweating. Why it was sweating? Because of affright. Because we were very affright. So that only. So underline that. पसीने छूट रहे थे. Then what is the meaning? बहुत डर लगना. Feeling so affright. So down the second question is दिए गए मुहावरों का प्रयोग करके वाक्य बनाएं. That is the muhavara, and also you have to make sentence using that. Okay, that I will give in the next class. Okay ma. Then part 7 अनोखी यात्रा notes. अर्थ धमाकेदार खबर hot news. धमाकेदार खबर hot news. मनमोहक दृश्य attractive view. मनमोहक दृश्य attractive view. चुंबकीय magnet. चुंबकीय magnet. लुका छिपी हाइड एंड सीक. लुका छिपी हाइड एंड सीक. बरगद का पेड़ बैनियन ट्री. बरगद का पेड़ बैनियन ट्री. once again धमाकेदार खबर हॉट न्यूज़. मनमोहक दृश्य अट्रैक्टिव व्यू. चुंबकीय मैग्नेट. लुका छिपी हाइड एंड सीक. बरगद का पेड़ बैनियन ट्री. देन पगडंडी फुटपाथ. पगडंडी फुटपाथ. खंडहरनुमा इमारत रूइंड बिल्डिंग. खंडहरनुमा इमारत रूइंड बिल्डिंग. खंडहरनुमा इमारत रूइंड बिल्डिंग. पारदर्शी ट्रांसपेरेंट. पारदर्शी ट्रांसपेरेंट. रुमाल कर्चीफ. रुमाल कर्चीफ. रोमांचक यात्रा एक्साइटिंग जर्नी. रोमांचक यात्रा एक्साइटिंग जर्नी. once again पगडंडी फुटपाथ. खंडहरनुमा इमारत रूइंड बिल्डिंग. पारदर्शी ट्रांसपेरेंट. रूमाल कर्चीफ. रोमांचक यात्रा एक्साइटिंग जर्नी. प्रश्न और उत्तर. निशा और उसकी सहेलियां कहाँ जा रहे हैं? क्वेश्चन एंड आंसर. निशा एंड हिज फ्रेंड्स आर गोइंग वेयर दे आर गोइंग. निशा और उसकी सहेलियां पिकनिक जा रहे हैं. वेयर दे आर गोइंग? दे आर गोइंग फॉर अ पिकनिक. निशा और उसकी सहेलियां कहाँ जा रहे हैं? निशा और उसकी सहेलियां पिकनिक जा रहे हैं. पुराने किले तक पहुंचने के लिए उन्हें कितनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ी? फॉर रीचिंग द ओल्ड फोर्ट how many steps they have to climb up? How many steps? पुराने किले तक पहुंचने के लिए उन्हें 400 सीढ़ियां चढ़नी पड़ी. They want to climb 400 steps. पुराने किले तक पहुंचने के लिए उन्हें कितनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ी? पुराने किले तक पहुंचने के लिए उन्हें 400 सीढ़ियां चढ़नी पड़ी. शिखा द्वारा खींची गई फ़ोटो से पुलिस को कैसे सहायता मिली? शिखा द्वारा खींची गई फ़ोटो से पुलिस को कैसे सहायता मिली? When Shikha has taken the photo, what help the police has got from these photos? What for help they got? शिखा द्वारा खींची गई फ़ोटो से पुलिस को वापस खंडहर तक जाने में बहुत सहायता मिली. They went back to that Kandahar. They went back to that building, ruined building. For that it helped. That photos what that Shikha has taken, it helped to take the police to reach there. Okay, so शिखा द्वारा खींची गई फ़ोटो से पुलिस को कैसे सहायता मिली? शिखा द्वारा खींची गई फ़ोटो से पुलिस को वापस खंडहर तक जाने में बहुत सहायता मिली. अंडरस्टूड? once again धमाकेदार खबर हॉट न्यूज़. मनमोहक दृश्य अट्रैक्टिव व्यू. चुंबकीय मैग्नेट. लुका छिपी हाइड एंड सीक. बरगद का पेड़ बैनियन ट्री. पगडंडी फुटपाथ. खंडहरनुमा इमारत रूइंड बिल्डिंग. पारदर्शी ट्रांसपेरेंट. रुमाल कर्चीफ. रोमांचक यात्रा एक्साइटिंग जर्नी.
निशा और उसकी सहेलियाँ कहाँ जा रहे हैं? निशा और उसकी सहेलियाँ पिकनिक जा रहे हैं। पुराने किले तक पहुंचने के लिए उन्हें कितनी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ी? पुराने किले तक पहुंचने के लिए उन्हें 400 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ी। शिखा द्वारा खींची गई फ़ोटो से पुलिस को कैसे सहायता मिली? शिखा द्वारा खींची गई फ़ोटो से पुलिस को वापस खंडहर तक जाने में बहुत सहायता मिली। Understood, ma? Learn the notes, finish the notes properly, and send the photos to me, and finish the book exercise also. Okay, ma? If you have any doubt, you can ask me. Okay, that's all for today. धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।